Shocking twist has now emerged in the Delhi school bomb hoax case. Now, police have revealed that a class 12 student, in fact, sent out over 400 threat emails in the past year. The investigation has unearthed some troubling links. The minor's parents are associated with an NGO, we are told, that supported Afzal Guru's mercy petition and allegedly also has ties to a political party. The BJP wasted no time in launching a blistering attack against the Aam Aadmi Party over this. In fact, BJP MP Sudhanshu Reddy accused national connections. Delhi BJP chief Virendra Sachdeva doubled down, citing past controversies involving foreign funding. Singh has hit back, accusing the BJP of politicizing the school children's safety issue. Allegations flying. ये मेल चुकी बड़े ही एडवांस, पुलिस को काफी समय लग रहा था। ये भी देखना था कि इसके पीछे कोई इस ग्रुप का हाथ है, ले रहे थे और इसकी डीप इन्वेस्टिगेशन की जा रही थी। वीपीएन इत्यादि का यूज से जनरेट हुई है। तो अभी तक की इन्वेस्टिगेशन से ये मानना मुश्किल है कि एक अकेला बच्चा इटली कैसे भेज रहा था। इसके लिए हम पूरे षड्यंत्र की डिजिटल जो है एविडेंस की मदद से जांच कर रहे हैं और ये भी देख रहे हैं कि इस तरह से दिल्ली का माहौल खराब करने के लिए और लोगों को परेशान करने के लिए कोई राजनीतिक रूप से प्रेरित होकर तो इस घटना के पीछे नहीं है। दिल्ली में जब जब विधानसभा चुनाव होने लगते हैं उससे पहले दंगे का माहौल बनाना और दिल्ली को डराने और दहलाने की कोशिश करना। आज जो जांच दिल्ली पुलिस की वक्तव्य से पता चलता है, जुवेनाइल को आगे कर जिस एनजीओ का नाम सामने आ रहा है और जो संबंध अफजल गुरु से मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, मुझे ये कहने में कोई संकोच नहीं है कि कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी कहीं ना कहीं इसके घेरे में है और इसके पीछे के कारण हैं। मैं बार बार कहता हूं कि दिल्ली में अवैध रोहिंग्या बांग्लादेशी बसाने का काम अरविंद केजरीवाल खुद करते हैं। अभी जो बांग्लादेशी एजेंट पकड़े गए, उनके पास जो कागज पकड़े गए, इनके दो विधायक महेंद्र गोयल और जय भगवान उपकार, उन दोनों के हस्ताक्षर हैं, वो सर्टिफाई कर रहे हैं, नकली आधार कार्ड बनवाए जा रहे हैं। हर वो व्यक्ति जो देश का दुश्मन है, देश को तोड़ने की साजिश रखता है, वो कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी का भागीदार मिलता है। भाजपा के पास कोई एजेंडा नहीं है दिल्ली के लिए और वो बार बार ऐसी नकारात्मक राजनीति करते हैं कि इतने गंभीर विषय पर भी वो राजनीति का विषय समझ रहे हैं। दिल्ली में स्कूलों को धमकी मिल रही है, जयपुर में, आंध्र प्रदेश में, राजस्थान में, इन जगहों पे स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। क्या इसके लिए अरविंद केजरीवाल जी जिम्मेदार हैं? क्या इसके लिए अरविंद केजरीवाल जी जिम्मेदार हैं कि एयरपोर्ट पे, एयरलाइंस पे कितनी ज्यादा बम से उड़ाने की धमकियां मिली हैं? भाजपा की ये आदत रही है झूठ बोलना, दोषारोपण करना। अमित शाह जी एज अ होम मिनिस्टर टोटल फेलियर रहे हैं। उनको ये एक्नॉलेज करना चाहिए, एक्सेप्ट करना चाहिए और इतने गंभीर विषय पर राजनीति बंद करनी चाहिए। My colleague Anshul is joining us on the broadcast for the latest on this story that also is being tracked out of the national. Who's been found was sending these hoax emails. Isn't it pushing too much that there is a connection now being drawn that they are supportive of an NGO that in fact demanded a mercy petition for Afzal Guru? Well, definitely. But since the political apparatus affected line, if you put the facts in order, there has been no direct connection that has been established between the NGO and the said juvenile. Now being studied by the juvenile out here in the national capital. Now, why the juvenile should not have the access to such sophisticated technologies through which it could send out such hoax emails. And in the background, the parents were once the background of the parents was checked. Then this alleged connection with the NGO came up, and that connection had a connection with other political parties. That connection has still been established between the NGO and the juvenile. If at all the NGO might have used the juvenile as a friend, as has been claimed the party police, but yes, the BJP was quick to respond to this press conference that was done by the Delhi police yesterday, and they very clearly went out and claimed that Aam Aadmi Party is the party who is involved
in sending out such hoax emails out here in the national capital. Okay. Although this does not hold a lot of ground at this point in time, but definitely the BJP hopes could be another election. Pranshul, do stay with us. We have more reactions to play out before our viewers. Let's take a look. चुनाव के दौरान और चुनाव के बाद दिल्ली कई कॉल्स आई थी, ईमेल्स आए थे और पूरे दिल्ली की जनता के मध्य उत्पन्न हुआ। यद्यपि बाद में उसमें कुछ भी नहीं पाया गया। प्रयास किया गया कि ये ईमेल्स कहां से आ रहे हैं, तो बहुत ही आश्चर्यजनक तथ्य प्रकाश में आया कि मूलतः यह ईमेल एक ऐसे के द्वारा ईमेल्स वर ओरिजिनेटिंग फ्रॉम ए पर्सन हु इज जुवेनाइल। अब इससे गहराई इसलिए बढ़ रही है कि क्या कोई अल्पवयस्क बालक अपने मन से कर रहा है ताकि दिल्ली की कानून व्यवस्था को बिगाड़कर दिल्ली के वातावरण को खा के लाभ या अपनी राजनीतिक विचारधारा की पुष्टि की जा सके। अभी कुछ देर पहले कमिश्नर श्री सुधांशु त्रिवेदी जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस तौर पे हो गई है और वो हर दिन नए नए खुलासे कर रहे हैं। पुलिस को भी जो जानकारी नहीं है, पुलिस के पास अपना मीडिया सेल है, पुलिस जो नहीं बता पाती वो सुधांशु त्रिवेदी जी बताते हैं। तो मैं भाजपाइयों से पूछना चाहता हूं कि तुम्हारी पुलिस में नियुक्ति कब से हुई? आप छोटे छोटे बच्चों को मिल रही बम की धमकी का राजनीतिक लाभ उठा रहे हो। पहली घटना कब हुई दिल्ली के अंदर? बच्चों के स्कूल को बम से उड़ाने की पहली घटना हुई, धमकी की पहली घटना हुई मई के महीने में। मई के महीने में। और आज लगभग 8 महीने 9 महीने बीत जाने के बाद दिल्ली पुलिस की तरफ से कोई प्रयास नहीं किया गया, कोई सबूत नहीं दिए गए, कोई बयान नहीं आया। जब 15 दिन चुनाव का रह गया है दिल्ली का, तो आज दिल्ली के पुलिस कमिश्नर और गलती से भारतीय जनता पार्टी के नेता सुधांशु त्रिवेदी जी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं।